Hello, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. चलो, let us start with the class. तो आज क्या बहुत कम बच्चे आए हैं? मैम अभी ज्वाइन कर रहे हैं. Okay. Okay. So last class we're discussing the topic of black body radiation. Okay. So black body radiation, we're considering the radiation of a black body. We define what is a black body and how the radiations of a black body, the curve of the energy with respect to wavelength of black body radiation curve is viewing. That was a practically result of an experiment, and no one could explain why we're getting the curve like this. Then we discuss the Wien's law, then we discuss the Rayleigh's law. So Wien's law explained that for the shorter wavelength, and Rayleigh's law explained for that the longer wavelength. Then Planck's considering all those things, Planck's proposed his Planck's radiation law, and we discuss some assumptions made by Planck. To before deriving this law, we have to define this assumptions. ठीक है? So इसको हमने डिस्कस किया था. That is, the black body radiator contains large number of harmonic oscillators of molecular dimensions lined up along the walls of the container, and each has a characteristic frequency of oscillation. And कितना है उसका, अगर frequency mu है, then an oscillator cannot have any arbitrary value of energy but can have only discrete values of energy. That is E equals to 0, E equals to h nu, 2h nu, like this. And then integral multiple of this n, where n equals to 0 से लेके 0, 1, 2 for any integer. And the oscillator can emit or absorb energy only in the form of packets of energy, but not continuously. So यहाँ पे discreteness आ गया, that is इसमें packet के form में आ गया, continuous को he is not considering. Then the emission or absorption of energy occurs only when the oscillator jumps from one energy state to another along with the energy difference given by delta E equals to delta N h nu. Okay, or E2 minus U n equals to this value. So let us start from this. यहाँ से लिखना start करो assumptions. आपको ये डेरिवेशन है, बहुत सारे इसमें आएंगे एक्सप्रेशन लिखना है. ओके, सो यहाँ पे let us see that the n is the total number of Planck's oscillator. So what we are assuming, the black body enclosure consists of a large number of simple harmonic oscillators lined up along the walls of the container. So कितना number of oscillator है? Let us define that number equals to capital N. And capital N be the total number of Planck's oscillators. And let E is the total energy of all oscillator. Oscillator, the total energy of the system, total energy of all oscillator. So what is the average energy of oscillator? That equals to E bar equals to E by N. N is the total, capital N, यहाँ से लिखो बच्चे, note down. Capital N be the total number of Planck's oscillators, and E is the capital E is the total energy. Then what is the average energy of oscillator? That equals to E bar equals to E by N. Okay.
ना इसको लेके हम अभी स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन। सो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, दैट इज ऑसिलेटर का एनर्जी 0 h nu 2 h nu। सो लेट अस कंसीडर और जितने सारे ऑसिलेटर है अमंग देम, सपोज कुछ का एनर्जी कितना है 0 है एंड कुछ का एनर्जी इज h nu एंड सम हैव एनर्जी 2 h nu लाइक दिस। So let us consider n naught number of oscillators are having energy 0. N1 number of oscillators are having energy h nu. N2 number of oscillators are having 2 h nu. And nn number of oscillators are having energy nh nu. ठीक है? We are defining so that total number of oscillator कितना है हमारे पास, जो क्या है n। n को हम कैसे लिख सकते हैं? n is sum of n0 plus n1 plus n2 up to nn. n टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, इसमें से एन नॉट का इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग ऑन दैट एनर्जी। सो एन नॉट, n1, n2, nn आर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी वैल्यू। सो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इक्वल्स टू n0 प्लस n1 प्लस n2 अप टू nn। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी है, इसको हमने ये भी किया था, लेजर में भी इसको यूज किया था। दैट इज n by Maxwell distribution formula, n equals to n naught exponential minus nh nu by kt। ठीक है, so this is the energy is the lower level ground state का एनर्जी कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स n naught, अकॉर्डिंगली हायर स्टेट में कितना होगा, जितने स्टेट है अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल minus nh nu by kt के फॉर्म में दिस इज वेरिंग। ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो अगर nn का वैल्यू इतना है देन हम n0 को क्या लिखेंगे, n0 तो n0 रहेगा, n1 कितना होगा, सो हाउ यू कैन राइट n1, लिखो n1 कितना होगा, n1 के लिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 एंड n2 के लिए इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 2 एंड n3 के लिए कितना पुट करेंगे, दिस वैल्यू इक्वल्स टू n3 के लिए 3 n इक्वल्स टू 3 ऐसे पुट करते जाएंगे, देन कितना आ जाएगी, दैट इक्वल्स टू n0 प्लस n1। लिखो इसको आप नोट करो, n0 कैपिटल N इक्वल्स टू n0 प्लस n1 इक्वल्स टू n0 इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस h nu अपॉन kt, n2 इक्वल्स टू n0 इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2h nu kt एंड दिस इज अप टू nh nu अपॉन kt। ठीक है, तो सभी में क्या है, n0 कॉमन है, and if you take n0 common then you can write that equals to 1 plus exponential this is minus h nu by kt plus n0 के लिए कितना था 2h nu by kt, n0 common ले लेंगे then we will get 1 plus minus h nu by kt minus 2h nu by kt plus so on। ठीक है, इतना लिखो, पहले एक फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी। सो ये कैसे एक्सप्रेशन में आएगा, that is 1, suppose this को हमने exponential minus h nu by kt को we are putting as x, so इसको क्या लिखेंगे, that is 1 plus x, then फिर h nu by kt का वैल्यू कितना आ गया, 2 के लिए उसको पुट करेंगे x स्क्वायर, so 1 plus x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ऐसे होते होते एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिखो पहले इस चीज को, हाँ ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, एक बार लिख लो देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो यू कैन राइट दिस 1 प्लस, इसको अगर लिखेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर एंड जिसका वैल्यू कितना होता है 1 बाई एक्स। यहाँ पे लिखो, इसको मैंने डिटेल डिफाइन नहीं किया, तो आप लिखो लेट अस डिफाइन एक्सपोनेंशियल माइनस h nu by kt इक्वल्स टू x। लिखो पहले एक्सपोनेंशियल माइनस h nu by kt इक्वल्स टू x, देन 1 प्लस h nu by kt प्लस ये एक्सप्रेशन का वैल्यू यू कैन राइट एज 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सो दिस इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू कितना होता है, and we know that 1 plus x square up to this equals to 1 by 1 minus x। ठीक है, so इसका वैल्यू 1 by 1 minus x पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमने कितना लिया था, this is exponential minus h nu upon kt,
यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपन के टी, एंड यहाँ पे एन नॉट भी है, ठीक है. सो वी कैन राइट n इक्वल्स टू दिस वैल्यू, n equals to n naught by 1 minus exponential h nu upon kt, that equals to n naught by 1 minus exponential minus h nu upon kt. ठीक है. So n को we can derive this equation, यहाँ से assume करके हमने we are getting an expression for this n equals to this value, n naught by 1 by exponential h nu upon kt. ठीक है. अभी यहाँ पे एनर्जी के लिए निकालेंगे. सो अभी सबसे क्या निकाला, वी आर डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एंड देन विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू एन नॉट, कितना होगा टोटल एनर्जी, दैट इज कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नॉट का एनर्जी कितना है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, एन नॉट का एनर्जी कितना है 0, n1 का एनर्जी कितना है h न्यू, n2 का एनर्जी कितना है 2h न्यू. सो टोटल एनर्जी कितना होगा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू सम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू सम ऑफ इनटू एनर्जी. ठीक है. सो इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी कितना होगा, दैट विल इक्वल्स टू n0 into 0 plus n1 into h न्यू plus n2 into 2h न्यू, n0 into nh न्यू, so on. ठीक है. So note down this thing, that is what is the total energy. Total energy E equals to n0 into 0 plus n1 into h nu plus n2 into 2h nu up to E. So यहाँ पे इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगी, एंड इसका वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, n1 का वैल्यू जैसे ऊपर पुट किया था, n1 इक्वल्स टू कितना है, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू n0 into एक्सपोनेंशियल माइनस h nu upon kt. Similarly, n2 equals to, we can write that value equals to n0 into exponential minus 2h nu upon kt. एंड सबका एनर्जी भी इसमें मल्टीप्लाई है, यहाँ पे h nu मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2h nu मल्टीप्लाई है, प्लस ऐसे सो ऑन. ठीक है. समझ में आ रहा है ये एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, हाँ बोलो, या नहीं आ रहा है, अरे ओके. हाँ, फिर अभी देखो ये टर्म तो 0 हो गया, देन यहाँ पे n0 कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा, अभी देखो ये टर्म अगर 0 है, अभी ये फर्स्ट टर्म इज दिस, एंड सभी में कॉमन क्या है, n0 भी कॉमन है, h न्यू भी कॉमन है, एंड यहाँ पे ये 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू अपन kt, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज कॉमन इन एवरी स्टेप. अब अगर इस फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1. तो सेकंड टर्म में क्या आएगी, देखो सेकंड टर्म में ये चला गया, यहाँ का ये 2h न्यू है, 1h न्यू चला गया, तो अनदर माइनस 1h न्यू बचा, एंड यहाँ पे 2h न्यू था, h न्यू चला गया तो खाली 2 बचा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 plus 2 into एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू अपन kt. ठीक है. अगर इसमें थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म में क्या आएगा, n3 plus 3h न्यू. n3 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगी, एंड यहाँ पे भी 3 आ जाएगी. सो एक h न्यू चला गया, तो पावर में कितना बचा, दैट इज माइनस 2h न्यू अपन kt, एंड यहाँ पे जो 3 है थर्ड टर्म का वो भी बचा. ओके. सो अगर हम इस चीज को देखेंगे, देन n0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू अपन kt, h न्यू इंटू 1 plus 2 into exponential minus h nu by kt plus 3 into exponential minus 2h nu by kt plus so on. ठीक है. सो ये इस यहाँ पे हम लेट अस डिफाइन, फिर से वही चीज जो डिफाइन किया था, लेट अस डिफाइन एक्सपोनेंशियल माइनस h nu by kt इक्वल्स टू x. ठीक है. लेट अस डिफाइन, यहाँ पे लिखो, फर्स्ट टू राइट दिस एक्सप्रेशन, इसको लिखो, इसके बाद डिफाइन करो. लेट अस डिफाइन exponential minus h nu by kt equals to x. So this part, खाली this part को सेपरेट करके लिखो, this part क्या बन जाएगी, this is 1 plus 2x plus थर्ड क्या आएगा plus 3x square plus फोर्थ टर्म आएगी 4x क्यूब. ऐसे होते होते विल गेट ए इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है. एंड ये जो इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू कितना होगी, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1 by 1 minus x का होल स्क्वायर. ठीक है. इसको डिफाइन करो,
दिस टर्म इक्वल्स टू x, इतना मैंने ये डिटेल नहीं लिखा, फिर भी सिंपल है, आप तो कर सकते हो, इसको लिखो जो जो मैं बोल रही हूँ. Let us define that this term equals to x. So we can write 1 plus 2x plus 3x square plus this equals to 1 by 1 minus x का whole square. ठीक है, इतना तो लिखो, वरना फिर बाद में कंफ्यूज हो गए नोट्स में कि कहाँ आया ऐसे. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n नॉट and this is exponential minus h nu by kt into h nu plus 1 plus ये, इसको करने के बाद we are getting, इस टर्म का वैल्यू आ गया h nu 1 by 1 minus x square. So 1 by 1 minus x square. So 1 by 1 minus x का वैल्यू कितना है, exponential minus h nu by kt and इसका whole square. एंड ये वाला टर्म सारे पहले थे, खाली डिनोमिनेटर में ऐड हो गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर. ठीक है, सो हम टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाल दिया. अभी यहाँ पे क्या आएगी, एवरेज एनर्जी. सो एवरेज एनर्जी क्या है, दैट इज टोटल एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, n इक्वल्स टू this value. So equation 3 divided by equation 2, that will give an expression for the average energy. Average energy equals to E by N. ठीक है, E by N equals to N naught exponential minus H nu by KT, and this is H nu by 1 minus exponential minus H nu by KT का whole square upon, इसका वैल्यू कितना है, दिस इज n नॉट बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल h t बाई kt. इसका वैल्यू तो आ गया, ऊपर वाला का वैल्यू इज दिस वैल्यू, यहाँ पे जो लिखा है हमने उस चीज को लिख लिया. एंड इक्वेशन 2 से कितना आया था, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू इज n नॉट बाई दिस वैल्यू. सो n नॉट बाई दिस वैल्यू, यहाँ पे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल h t बाई kt एंड यहाँ पे 1 माइनस h nu बाई kt का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म इसके साथ कैंसल, तो स्क्वायर हट गया एंड ये टर्म हट गया, यहाँ पे n नॉट भी हट गया, दोनों n नॉट भी कैंसल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर को कैंसल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, दिस इज h न्यू इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाई kt बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kt. अगर इसको हम यहाँ पे इस टर्म से ये टर्म कैसे आया, समझ में आ रहा है, 1 by h nu by kt को we are multiplying with this term. So अगर ये हम पे माइनस को हटाएंगे तो ये नीचे आ गया, exponential minus h nu by kt equals to 1 by h nu by kt and that is being multiplied with this term. So यहाँ पे क्या आ जाएगी, this is exponential h nu by kt minus 1, क्योंकि ये प्लस h nu बन गया एंड ये माइनस h nu, दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे you will get this term h nu by exponential h nu by kt minus 1. Or we can write average energy equals to h nu by a exponential h nu by kt. So this is an expression for the average energy. Okay, मैंने ये नोट्स आपको शेयर नहीं किया, अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लो अगर ये नोट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप डायरेक्ट लिख लिया था, मैंने इसको फिर से अभी लिखा नहीं, एज पर इसमें जैसे था मेरा पूरा नोट सही है, पर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मैं फिर इसको फिर से प्लंक्स थ्योरी को लिख के आपको दे दूंगी. ठीक है, आई विल शेयर दिस नोट्स टुडे, अभी शेयर कर रही हूँ, आप देख लो, अगर किसी को दिक्कत है देन अगेन आई विल रीराइट दिस थिंग इन अ न्यू पेज, डिटेल जो टर्म बोला मैंने अभी उसको लिख के दे दूंगी, आप मुझे बता देना पढ़ने के बाद. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी प्लैंक्स फार्मूला. सो ये तो उनका एजम्पशन के फॉर्म में, ही गॉट एन अराइव फ्रॉम दिस एवरेज एनर्जी. अभी ये जो फाइनल फॉर्मूला का डेरिवेशन किया क्या, सो ही टुक द रेलेजेंस लॉ का पहले फिर से उन्होंने लिया. सो वी नो दैट the number of oscillators per unit volume in the frequency range nu and nu plus d nu. So this was given by Rayleigh, that is यहाँ पे हमने n के फॉर्म में डिफाइन किया था, वही चीज है, f equals to 8 pi nu square by c cube d nu. So ये भी एक टर्म जो प्लैंक ने डिफाइन किया by considering that Rayleigh's law. So this is the number of oscillators per unit volume, कितना हो गया, that equals to 8 pi nu square by c cube d nu.
ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में वहां पे हमने लैम्डा के फॉर्म में लिखा था, याद होगा। नाउ ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इंटरवल, फ्रीक्वेंसी का इंटरवल कितना ले लिया, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आर ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, सो दैट नंबर इज डिफाइंड एज 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ओके, एंड इसको दिया इक्वेशन 5। अभी this equation with the average energy of the oscillator given by equation 4 will get the total energy per unit volume belonging to the range d nu। so number of, देखो यहाँ पे equation 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। ये एक टर्म डिफाइन किया है, एक्चुअली डेरिवेशन से आया है, तो हम डेरिवेशन तो नहीं पढ़ रहे, तो अभी इसको इसमें कुछ कुछ टर्म हमें याद करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्किपिंग द डेरिवेशन एज देयर इज, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस है, नहीं तो हम उसको डिफाइन करेंगे, आपको याद रखना है। सो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितना है, ई बार है। ओके, सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल एनर्जी कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एनर्जी। ओके, समझ में आ रहा है क्या इस टर्म कर रहे हैं, दैट इज द व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का एनर्जी कितना है, एक पार्टिकल का एवरेज एनर्जी इज ई बार, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी न्यू। सो व्हाट इज द total energy per unit volume belonging to the range d nu or in the energy density belonging to the range d nu is equals to this value। so energy कितना होगा, that equals to d nu range में जितना energy particle lie कर रहे हैं, the total energy of all the particles in a frequency interval nu and nu plus d nu equals to e nu d nu equals to 8 pi nu square by c cube d nu, and then इसमें क्या multiply कर लिया, this is the number of particles into average energy। ठीक है, that is equation 4 आ गया, कितना h nu average energy is h nu by exponential h nu upon kt minus 1, so this is average energy into number of particles is this। ठीक है, so इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो we can get, इसको लिखो बच्चे, ये नहीं लिखो समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, पर एक बार इसको लिखना पड़ेगा समझ के। so this is 8 pi nu square by c cube and this is h nu and this is d nu upon exponential h nu by kt minus 1। okay, so this is the energy and इसी को लिख लिया as a combine करके बॉक्स बना के इक्वेशन 6 नाम दे दिया, वही एक्सप्रेशन है। so this is the Planck's radiation law in terms of frequency। ठीक है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसी चीज को इन्हें फ्रीक्वेंसी रेंज के बदले में वेवलेंथ रेंज लिखेंगे, देन ये क्या आ जाएगी, दैट इज लैम्डा बाय लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। So what is the number of oscillators per unit volume in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda, then यहाँ पे हमें nu को रिप्लेस करना पड़ेगा lambda से। nu को रिप्लेस करना lambda मतलब c equals to nu lambda, c equals to nu lambda, nu equals to c by lambda, so d nu equals to, कल में भी मैंने बोला था, कल फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ से कैसे फ्रीक्वेंसी आएंगे वो बोला था ना, अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिया देन उसको वेवलेंथ आप कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, न्यू को आप हमें सी बाय लैम्डा के फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो डी न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, देन उसको फिर करेंगे, देन उसको करने के बाद कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम कन्वर्ट करेंगे सी न्यू इक्वल्स टू माइनस सी बाय इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। एक्चुअली जब हम डी न्यू एंड डी लैम्डा करेंगे यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी क्योंकि लैम्डा नीचे है, जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे माइनस साइन आएगी। तो कल भी मैंने आपको रेडियंस लॉ से दिखाया था, आई थिंक यू हैव इसको यहाँ पे दिखाया था, जो दैट इज सी लैम्डा के फॉर्म में लिया था, देन फिर सी के फॉर्म में आया, सी न्यू के फॉर्म में कैसे करेंगे यहाँ पे इस चीज को दिखाया था। एंड इन द सेम फॉर्म इतना तो आप कर सकते हो एंड ट्राई टू डू दिस थिंग। सो क्या आ जाएगी 8 by h न्यू क्यूब by c क्यूब d न्यू by h न्यू अपन kt। तो यहाँ पे न्यू क्यूब को क्या लिखेंगे c by लैम्डा एंड d न्यू कितना बन जाएगी c by लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, इसको मॉड ही लेना है क्योंकि ये सब चीज को अभी नेगेटिव नहीं होता, तो प्लस माइनस आए तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे s न्यू बाई kt, न्यू को हमने क्या पुट किया c बाय लैम्डा, दैट इज h c बाय लैम्डा kt माइनस 1, दैट इक्वल्स टू 8 by hc बाय लैम्डा की पावर 5 into 1 by exponential h nu by lambda kt minus 1 d lambda. So this is the e lambda d lambda equals to 8 pi sc upon lambda 5 1 by exponential sc by lambda kt minus 1 d lambda.
ठीक है. सो दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. इसको भी यहाँ पे लिखा है. चलो इसको भी यहाँ पे लिखा है डिटेल करके, इसको आप देख सकते हो. So this is equation 7. E lambda d lambda equals to 8 pi SC upon lambda 5 d lambda by exponential SC by lambda KT minus 1. So this is your expression of Planck's radiation law in terms of wavelength, and this is expression in terms of frequency. Equation 6 and 7 are both represent the Planck's radiation law. So one in terms of frequency, the other in terms of wavelength. ठीक है. तो समझ में आया बच्चे? किसी को कोई डाउट है इसमें डेरिवेशन में? नो मैम. हाँ, अगर किसी को है तो बता, एक बार फिर देख सकते हैं, पर इसको लिखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ऐसे हम क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप भी मैंने डिटेल नहीं लिख पाई थी, फिर से नहीं लिखा इसको डिटेल के लिए, क्योंकि नोट्स तो मेरे अपने हिसाब से था, आपको डिटेल दिखाने का फॉर्म में इसको नहीं लिख पाई मैं. फिर भी आप पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं इसको फिर से लिख के आपको दे दूंगी. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, अभी जो प्लांक्स ने जो लॉ बनाया, जैसे ही कंसिडर ऑल द एस्पेक्ट, सबका लॉ स्टडी करने के बाद ही गिव द कंक्लूजन एज द प्लांक्स रेडिएशन लॉ. सो अकॉर्डिंग टू प्लांक हम ये चीज, क्योंकि ही आल्सो कंसिडर्ड विन्स लॉ एंड रेलेजेंस लॉ. सो विन्स लॉ इज वैलिड फॉर शॉर्टर वेवलेंथ एंड द रेलेजेंस लॉ इज वैलिड फॉर longer wavelength. So Planck's ने क्या बोला, that is ये law it can reduce to Rayleigh's law and Wien's law in certain conditions. ये इसको reduce भी हो सकता है. So कैसे होगा, that is we can derive Wien's law from this Planck's law. इस फॉर्मूला से Wien's law जो हमने लिया था उसको भी कर सकते हैं. Wien's law का फॉर्म क्या था, चलो अभी आते हैं, फिर फॉर्म पे जाते हैं. So Wien's law क्या है, it is valid for small wavelength. ठीक है. अगर वेवलेंथ छोटा होता है, शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लैक बोर्ड रेडिएशन का ग्राफ तो याद है, ऐसे कर्व के फॉर्म में लिया था. विन्स लॉ क्या है, ये पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था. यहाँ पे जो हमने ग्राफ लिया था, यहाँ पे वेवलेंथ एंड यहाँ पे एनर्जी. सो ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए विन्स लॉ ट्रू है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था. सो व्हेन दिस वेवलेंथ लैम्डा एंड टेम्परेचर वेवलेंथ इज स्मॉल, मतलब लैम्डा टी भी स्मॉल होगा. ठीक है. इफ लैम्डा इज स्मॉल देन लैम्डा टी इज आल्सो स्मॉल. सो लैम्डा टी स्मॉल मतलब ये जो क्वांटिटी है एक्सपोनेंशियल एससी अपॉन लैम्डा के टी, ये वाला स्मॉल हुआ, मतलब ये वाला क्वांटिटी लार्ज हो गया. डिनोमिनेटर में यहाँ पे पावर में जो है एक्सपोनेंशियल एससी बाय लैम्डा के टी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, देन ये क्वांटिटी लार्ज है. ये क्वांटिटी लार्ज है मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी वेरी बिग क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी एज कंपेयर टू 1. ठीक है. नोट डाउन दिस थिंग. सिंस Wien's law, लिखो, Wien's law is valid for short wavelength. So for short wavelength, lambda is small. So since lambda is small, then lambda t is also a small quantity. So if lambda t is a small quantity, then this exponential SC by lambda kt will be much more than 1. That is much more than 1. So हमारी Planck's law क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, this is 8 pi SC by lambda 5 exponential SC by lambda kt minus 1. So जब ये क्वांटिटी बहुत लार्ज है, if this quantity is very large as compared to 1, then we can ignore this one with in this expression. 1 को let us ignore this thing. Ignore करेंगे then कितना आ जाएगी, we can write this as SC by lambda kt. ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 8 pi SC by lambda की पावर 5 exponential minus SC upon lambda d lambda. ठीक है. So दिस इज आवर विन्स लॉ. यही लॉ होता है विन्स लॉ. क्यों विन्स लॉ का फॉर्म बताओ. विन्स लॉ को हमने क्या डिफाइन किया था, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू के लैम्डा की पावर -5 एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाय लैम्डा टी डी लैम्डा. सो दिस इज योर विन्स लॉ. ओके. यहाँ पे देखो के के फॉर्म में क्या आ गया, एक कांस्टेंट. यहाँ पे ऊपर जो क्वांटिटी है 8 पाई एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ये सारे कांस्टेंट है. तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट के. एंड लैम्डा की पावर नीचे 5 है, मतलब ऊपर चला गया तो लैम्डा की पावर -5 हो गया. एंड यहाँ पे क्या लिखा, एच सी लैम्डा बाई लैम्डा के टी. एच सी कांस्टेंट है, यहाँ पे के इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी. सो इसको हमने ले लिया एज ए क्वांटिटी ए. ठीक है. अगर इसको हमें कांस्टेंट ले लेंगे ए क्वांटिटी ए,
So this is exponential minus SC by lambda kt equals to minus A by lambda t. And this equals to d lambda. That's why हम इसको कह सकते हैं this law is in the form of Wien's law. ठीक है, Wien's law का फॉर्म याद होगा, E lambda d lambda equals to k lambda के पावर -5 exponential A. हमने बोला था it is a function of lambda and t, and इसको बाद में उसने लिखा था as a form of exponential minus A by lambda t d lambda. Yes, so we can write Wien's law from Planck's law. We can derive Wien's law from Planck's law in the specific condition. Okay, and then what is your Rayleigh's law? So Rayleigh's law क्या कहता है? Rayleigh's law कैसे लिखा लेगा? Rayleigh's law यहाँ पे लिखो. Rayleigh's law is true for longer wavelength, larger wavelength. That is, when lambda का value large, then Rayleigh's law is explaining the blackbird radiation graph. So lambda का value अगर ज्यादा है, then lambda t भी ज्यादा होगा. When lambda is large and then t is also large, so अगर हम बताएंगे this is SC by lambda kt, SC by lambda kt का expression, इसको हम derive करते हैं. Let us derive that exponential का form पूरा derive करेंगे, then क्या होगा? 1 plus SC by lambda kt, e to the power x का derivation आपको याद है, that is 1 plus x plus x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, etc. So this is 1 plus SC by lambda kt plus SC by lambda kt square and so on. अभी हमने यहाँ पे क्या बोला? Lambda large है. If lambda is large, then lambda t is also large. If lambda t is large, then SC by lambda kt का वैल्यू क्या होगा? It will be very very small. तो उसका ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लार्ज क्वांटिटी आ गया, मतलब दिस क्वांटिटी इज स्मॉल क्वांटिटी. सो स्क्वायर ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी क्यूब हायर पावर ऑफ ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो स्मॉल दैट लेट अस इग्नोर द अदर टर्म्स. लेट अस कंसीडर ओनली द फर्स्ट टर्म. ठीक है, दैट इज सेकंड फर्स्ट टू टर्म, दैट इज 1 plus SC upon lambda kt. Okay, so we are defining on the specific condition exponential SC by lambda kt is reduced to this form 1 plus SC by lambda kt. So what is our Planck's law? Planck's law क्या था? Planck's law का form is E lambda d lambda equals to 8 by SC upon lambda के power 5 d lambda upon exponential SC upon lambda kt minus 1. So यहाँ पे इसको हमने पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? This is 1 plus इसका वैल्यू क्या था? Exponential SC upon lambda kt equals to 1 plus SC by lambda kt minus 1. ठीक है, 8 by SC by lambda के पावर 5 d lambda plus 1 plus SC by lambda kt minus 1. So 1 से 1 being cancel out, हमारे पास क्या बचा अभी टर्म? That is SC by lambda kt बचा, and ये ऊपर चला जाएगा तो you can write 8 by SC upon lambda के पावर 5 lambda kt upon SC d lambda. ठीक है, so this is E lambda d lambda equals to 8 pi kt upon lambda के पावर 4 d lambda. ठीक है, so कल हमने Rayleigh's law भी पढ़ा था, बिल्कुल in the same form. So let us see, दोनों लॉ को फिर से एक बार देख लेते हैं. So E lambda d lambda equals to 8 pi kt by lambda के पावर 4 d lambda. So this is your Rayleigh's law, कल हमने पढ़ा था. And Wien's law हमने पढ़ा था, that is E lambda equals to k lambda के पावर -5 exponential minus a upon lambda t. ठीक है, so दोनों लॉ का फॉर्म हमने अभी डिराइव किया फ्रॉम प्लांक्स लॉ. दैट इज प्लांक ने ऐसा एक लॉ दिया जो कि सबके लिए सुइटेबल है. दैट इज सबका थ्योरी को ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ये थ्योरी, दिस थ्योरी इज टोटली इनवैलिड. दिस थ्योरी इज आल्सो, क्योंकि विन्स ने वन पार्ट को प्रूफ किया था, दिखा पाए थे, एंड Rayleigh's ने अदर पार्ट को दिखा पाए थे, एंड प्लांक्स had shown all the things considering all these ideas, and that's why formulated a law which can derive Wien's law for shorter wavelength and Rayleigh's law for the longer wavelength. ठीक है, so this is all about your, ये आपका ब्लैकबर्ड रेडिएशन का टॉपिक इतना ही है, ये खत्म. अभी हम इसका क्वेश्चंस आंसर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. बताओ समझ में आया बच्चे? ये टॉपिक ऐसे ही सबसे इजी टॉपिक होता है एज कंपेयर टू एनी, सारे जो फिजिक्स का सिलेबस में बहुत इजी है. फिर भी बताओ किसी को कोई डाउट है तो बोलो. नहीं मैम आ गया.
आ गया? ओके, Yeah. सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस। इसका एक्चुअली क्वेश्चन भी बहुत आसान है पर करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन, अब कुछ कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे ये लिखा है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको करना, बताओ। क्वेश्चन 1 देखो, पढ़ो एंड बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कर सकते हो नहीं कर सकते? क्वेश्चन तो दिख रहा है सबको? How much you देखो क्वेश्चन, an electric heater emits 15,000 watt of thermal radiation. Assuming that the coil of the heater radiates like black body, determine its temperature. Given surface area of the coil equals to this and sigma is equals to this. तो कैसे करोगे? सिग्मा क्या है बताओ? सिग्मा को यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस? सिग्मा क्या है? व्हाट इज सिग्मा? उसका यूनिट देखो, बताओ सिग्मा क्या है? सिग्मा आपको समझ में आ रहा है क्या चीज है? इसका क्वेश्चन सबसे आसान होता है, फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ है नहीं सोचने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो इतना ही है, डिफाइंड फॉर्मूला है। ये कौन सा लॉ में यूज होगा सिग्मा? बताओ बच्चे, कल पढ़ा था आपने? अरे बोलो, क्या लॉ पढ़ा था? अभी मैंने 2 लॉ देखा, और सबसे पहला एक छोटा सा लॉ है जिसको कल डिफाइन किया था, वो लॉ क्या है? ये क्या स्टीफन्स लॉ पढ़ा था? स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? E इक्वल्स टू सिग्मा टी फोर्थ। मैंने आपको ये E का भी फॉर्म दिखाया था, दैट इज हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, दैट इज P बाई A इक्वल्स टू सिग्मा टी फोर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। हाँ बच्चे, मान्या मुझे अटेंडेंस भेज देना बेटा। ओके, सिग्मा इक्वल्स इज द स्टीफन्स कांस्टेंट, एंड इसके फॉर्म में आपको ये सारे चीज आपको लिखना है। तो इसको बोलो कैसे करोगे? व्हाट इज गिवन? पावर इज गिवन, एरिया इज गिवन एंड सिग्मा इज गिवन। ठीक है, क्या पूछा है? यू हैव टू डिटरमाइन द टेम्परेचर। तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे? दैट इज गिवन P इक्वल्स टू 15,000 watt, area equals to this, sigma equals to this. So E equals to P by A equals to sigma T4. From Stephen's law, E equals to sigma T4. E क्या है? That is the energy radiated per unit area per unit. Recording in progress. Okay, you see these questions? That is given P equals to this and A equals to this, sigma equals to this. So you can find T फोर्थ का वैल्यू आ जाएगी, T फोर्थ आ जाएगी, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। समझ में आ रहा है बच्चे क्वेश्चन?
हाँ बच्चे, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? अरे कुछ तो बोलो, क्वेश्चन देखो, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या क्या गिवन है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, वहां पे भी क्वेश्चन लिखा है पर वो रेड पेन में लिखा है तो नहीं दिख रहा है। सो इतना, दिस इज द पावर इज गिवन 1500 watt and that is the surface area is this. So what is the temperature? So यहाँ पे सीधा लिखो, note down the given P equals to this, A equals to this, sigma equals to this, and we know that E equals to P by A equals T sigma T fourth from Stephen's law, or we can write T fourth equals to P by A sigma, that equals to सबका value put कर दो, T की power fourth का value आ गया, then using the calculator you can find the value of T. ठीक है, जो भी क्वांटिटी है उसका पावर 1/4 करोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन हुआ, लिखो सारे, फटाफट लिखो इसको, इसको भी सबमिट करना है। इस यूनिट में 3 ट्यूट आएंगे क्योंकि 3 डिफरेंट सब्जेक्ट है। अभी देखो, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिटेड बाय ए ह्यूमन बॉडी ऑफ स्किन टेम्परेचर 30 डिग्री, ए टंगस्टन फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ऑफ 1500 केल्विन and the sun having the surface temperature of 6000 Kelvin. ठीक है, so कैसे करेंगे? maximum wavelength of the black body radiation emitted by this thing, temperature given है and you have to find the, यही क्वेश्चन ऊपर भी लिखा है। so according to Wien's displacement law, lambda max T equals to C, and इस C का वैल्यू जनरली बहुत बार दे देता है कांस्टेंट का वैल्यू, तो यहाँ पे समझने के लिए C का वैल्यू लिखो, that is C equals to this, so lambda निकालना है, find the wavelength, temperature is given, तो very simple formula, Wien's law, Wien's distribution displacement law, that is lambda max T equals to C, और C equals to this, T equals to, सबका टेम्परेचर गिवन है, तो आप A में क्या है, lambda max equals to C by T, ह्यूमन बॉडी के लिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो वी आर गेटिंग दिस लैम्डा मैक्स, एंड तो इसका वेवलेंथ इतना कम है कि इसमें ये ज्यादा है कि इट इन द इंफ्रारेड रीजन में चला गया, तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अभी सेकंड में क्या, टेम्परेचर इज दिस 1500 केल्विन, सो इसमें लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगी, C by T, दैट इक्वल्स टू C का वैल्यू अपॉन T कितना है 1500 केल्विन, सो इसका वैल्यू यू कैन फाइंड एज लैम्डा मैक्स, इट इज आल्सो इन इंफ्रारेड रीजन। अभी यहाँ पे देखो सन का रेडिएशन देखो, T इक्वल्स टू 6000 केल्विन, सो लैम्डा मैक्स क्या है, वही C का वैल्यू है अपॉन दिस टेम्परेचर, देन इसका वैल्यू आ रहा है दैट इज इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में ये आ रहा है क्योंकि ये इतना इस बार वेवलेंथ के अंदर ही सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, समझ में आया? अरे क्वेश्चन आ रहा है समझ में, नहीं? हाँ अनुष्का, हाँ बेटा अनुष्का, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस। हाँ हर्ष गुप्ता, हाँ हर्ष गुप्ता, यस मैम। हाँ क्वेश्चन हो रहा है, ये दोनों तो इजी इजी क्वेश्चन है, हो रहे? यस मैम। ओके, यस हर्षित, दोनों यस मैम। हो रहा है क्वेश्चन? ओके, ये बहुत, ये ऐसा चैप्टर है कि जिसको एक बार पढ़ लिया, आंख बंद करके इसका क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे कैसे भी फॉर्म में आए, और है भी ऐसे छोटा सा ही चैप्टर है, एक ही डेढ़ पीरियड का ही है इसका सिलेबस। ओके, अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ इन ए ब्लैक बॉडी कैविटी एट ए टेम्परेचर ऑफ 1500 केल्विन एट ए वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ इन ए ब्लैक बॉडी कैविटी एट ए टेम्परेचर ऑफ 1500 केल्विन एट ए वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। देखो तो क्या गिवन है, T इज गिवन, लैम्डा इज गिवन, और क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है,
This is E lambda D lambda. This is Planck's law आ गई 8 by SC by lambda square 5 1 by SC by cavity minus 1 D lambda. Okay. For unit wavelength range मतलब D lambda का वैल्यू आपका 1 है. रेंज मतलब क्या लैम्डा प्लस डी लैम्डा. यहाँ पे डी लैम्डा का वैल्यू कितना है 1 है और यू कैन राइट दिस ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 by SC by lambda square 5 1 by दिस वैल्यू. बाकी सबका वैल्यू आप हमें कांस्टेंट है पता है. ठीक है. यहाँ पे क्या डी लैम्डा का वैल्यू हम 1 पुट कर लेंगे. बाकी 8 पाई तो कांस्टेंट है. एस तो प्लैंक्स कांस्टेंट पता है 6.6 and 10 to the minus 34 एंड C 3 into 10 to the power 8 लैम्डा का वैल्यू गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम एंड यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का वैल्यू भी हमें पता है. सब पुट करने के बाद कितना आएगा वैल्यू दैट वैल्यू इक्वल्स टू अगर हम सारे पुट कर लेंगे and T का वैल्यू भी पुट कर लेंगे 1500 then we'll get the value of E lambda equals to 7.23 into 7.23 के फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. So this is E lambda. So ऐसा क्वेश्चन देख के लग रहा है बहुत बड़ा है पर है नहीं कुछ बड़ा. दैट इज क्या करना है. लॉ तो इसमें 2-3 ही इसमें से कोई एक लॉ इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है. So let us see the next question. This is mercury vapor observing a photon of wavelength 140 nanometer emits 2 photons. If one has a wavelength of 180.5 nanometer, what is the wavelength of the other? देखो इसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन. So what is given? Wavelength of the photon absorbed lambda equals to 140 nanometer. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. Wavelength of one photon emitted lambda 1 equals to 180.5. इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. So क्या पूछा है इसने? lambda 2 पूछा है. That is एक फोटोन एब्जॉर्ब किया तो 2 फोटोन इसने एमिट कराया. ठीक है. So यहाँ पे क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा. Energy h nu equals to h nu1 plus h nu2. That is total energy is conserved. E equals to एक फोटोन का एनर्जी is giving 2 photons, so E equals to E1 plus E2. जो एक इंसिडेंट फोटोन equals to sum of the energy of the 2 photon. Okay, 2 emitted photon. So that is E क्या है? h nu, that is hc by lambda equals to hc by lambda 1 plus hc by lambda 2. एंड यहाँ पे तो एस सी कॉन्स्टेंट है तो ये आ गया 1 by lambda प्लस इक्वल्स टू 1 by lambda प्लस 1 by lambda 2. सो हमारे पास क्या है? लैम्डा है, लैम्डा 1 है, देन लैम्डा 2 निकाल सकते हैं. लैम्डा का वैल्यू गिवन है 140 के रेंज में, ये 180 के रेंज में गिवन है तो लैम्डा 2 हम निकाल सकते हैं. सो क्या आया? 1 by lambda 2 इक्वल्स टू 1 by lambda माइनस 1 by lambda 1. दैट इज 10 की पावर 9 140 माइनस 10 की पावर 9 180.5. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे देन विल गेट द वेवलेंथ ऑफ द अदर फोटोन. ठीक है. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. Calculate the energy in electron volt of a photon of wavelength 1 angstrom. What is momentum of this photon? ठीक है. Calculate the energy in electron volt. क्या गिवन है बताओ. क्वेश्चन कल देख के इसको बता सकते हो. कुछ भी नहीं है इसमें. फोटोन का वेवलेंथ इज गिवन तो उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. फोटोन मतलब उसका स्पीड कितना है? सी, स्पीड ऑफ लाइट से ही जाता है. सो व्हाट इज गिवन? वेवलेंथ अगर गिवन है देन उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. आपके पास न्यू आ गया
सो आपका एनर्जी कितना है, E इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी आ गया, खाली एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कर सकते हो। एंड बी क्या है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन, मोमेंटम कैसे निकलता है फोटोन का, कैसे निकलता है, रिलेटिविटी में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सारी चीज पढ़ा था, बताओ। फोटोन के केस में तो क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है, हम एमबी करके नहीं निकाल सकते। अभी देखो ये चीज का सॉल्यूशन है, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इक्वल्स टू एच न्यू दैट इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा इज दिस, लैम्डा का वैल्यू कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 इन 10⁻⁻10 मीटर, सो E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा दैट इक्वल्स टू 6.62 10⁻³ 3 into 10⁸ सो इसका वैल्यू कितना आया, अगर हम यहाँ पे एच सी अपन इसका वेवलेंथ को पुट करेंगे देन विल गेट दिस इक्वल्स टू दिस मच जूल, E इक्वल्स टू दिस मच जूल। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे देन कितना होगा, दैट इक्वल्स टू दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड व्हाट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम कितना है, P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा दैट इक्वल्स टू, फोटोन के लिए क्या कर सकते हैं, P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, डी ब्रोगली के केस में हम कर सकते हैं, P इक्वल्स टू E बाय लैम्डा दैट इक्वल्स टू कितना है 6.62 इंटू 10⁻34 by 10⁻10, क्योंकि लैम्डा हमारे इतना है, h का वैल्यू इतना है, so we can also calculate by like this। ठीक है, और क्या एक मोमेंटम के लिए रिलेशन है, E इक्वल्स टू पी सी, वो भी हम ले सकते हैं, E इक्वल्स टू पी सी लेंगे देन P इक्वल्स टू E बाई सी, इस फॉर्मूला से P को लिखा, अगर या इस फॉर्मूला को देखो E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, सो H बाई लैम्डा इक्वल्स टू कितना है E बाई सी, सो यहाँ पे आपका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम के लिए और एक रिलेशन है, एनर्जी E इक्वल्स टू P इंटू सी, दिस इज फॉर फोटोन ओनली। ठीक है, फोटोन के लिए रिलेटिविटी में हमने इसको किया था, सो P इक्वल्स टू कितना आएगा E बाई सी दैट इक्वल्स टू h बाय लैम्डा, कैसे पता चलेगा E बाई सी इक्वल h बाय लैम्डा, क्यों E इक्वल्स टू h न्यू दैट इक्वल्स टू h c बाय लैम्डा, सो E बाई h करेंगे देन दैट वैल्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा एंड जिसका वैल्यू होता है मोमेंटम। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द फोटोन P इक्वल्स टू 6.62 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस आर सम क्वेश्चंस, छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ है नहीं। ओके चलो अभी तो टाइम कम है, टॉपिक हो गया, सो लेट अस स्टॉप हियर। सो कल हम फिर स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसके लिए पेन पेपर लेके बैठना है, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कोई डाउट है इसमें बता दो, डाउट नहीं तो कम से कम नो बोलो, समझ में आ गया तो यस बोलो, वरना नहीं भी समझ में आया पढ़ के बताओगे वो भी बता दो। ठीक है, बोलो, सबको समझ में आ गया टॉपिक आज का, जो कल और आज जो पढ़ा था, अरे बोलो कुछ। हाँ जय कुमार, मुदित समझ में आया, शिवम यस मैम, आ गया टॉपिक समझ में, ओके। एंड एक बात बताओ, आप सबके पास बुक है, बुक मिला आपको, नया वाला बुक मिला क्या, पीडीएफ उसका क्या बुक कहीं से किसी को या नहीं मिला? मैम जो पीडीएफ ग्रुप पे भेजी थी वो है बस, उसमें ये नहीं है, ये वाला टॉपिक उस बुक में है नहीं, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में है, ये क्वांटम मैकेनिक्स मिल जाएगी, स्टैटिस्टिकल मिल जाएगी, पर ये वाला टॉपिक जो अभी हुआ है छोटा सा, ये नहीं है उसमें, ब्लैक बोर्ड एडिशन उस बुक में है नहीं। ठीक है, तो या अगर किसी को मतलब 2013 के 14 के बाद जो बुक बना वो उससे पुराना बुक है, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ था जिसमें ये टॉपिक ऐड हुआ था। तो आपको और किसी के पास कोई बुक नहीं है उस पीडीएफ को छोड़ के? नया बुक किसके पास है नहीं? अरे बोलो, किसी के पास है तो शेयर कर दो अपने ग्रुप में। है क्या? क्योंकि ये टॉपिक मिलेगा नहीं उस बुक में, मैं तो भी नोट्स भेज रही हूँ, नोट्स एंड ट्यूटोरियल भेज दूंगी, वो तो आप पढ़ लोगे, पर बुक्स तो चाहिए, कुछ कुछ के लिए तो बुक तो पढ़ना पड़ेगा।
हाँ बताओ, किसके पास है नहीं बुक? अरे बताओ, किसी के पास तो होगा जरूर, कहीं ना कहीं पे तो सीनियर्स होंगे, किसी का फ्रेंड होंगे, कहीं ना कहीं पे मिल जाता है बुक्स। किसी बुक है या नहीं? अरे सारे बोलो, यस या नो बोलो। नो मैम। किसी के पास भी नहीं है? ओके, ठीक है। फिर इस टॉपिक का अगर नहीं है तो मैं इसका कहीं सी बुक से आपको फोटो भेज दूंगी, ठीक है? नोट्स के साथ फोटो भी भेज दूंगी, इसको पढ़ लेना। ओके, चलो लेट अस स्टॉप हियर एंड आई एम एंडिंग द मीटिंग।